Good morning, students. Today we are going to start the second part of our chapter 4, that is moving coil galvanometer. Now, to understand the concept of moving coil galvanometer, first of all we need to find what is a torque on a current loop in a uniform magnetic field. इसका मतलब है कि जब भी आप एक करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो इन दैट केस द करंट लूप विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। और सबसे पहले हम यही निकालेंगे कि व्हाट विल बी द टॉर्क ऑन अ करंट लूप व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, वी विल कंसिडर अ करंट लूप in a uniform magnetic field. We have a loop as PQRS और इस फिगर में मैंने L and B मार्क करा है, where L is the length of the loop and B is breadth of the loop. We have taken a rectangular loop जो sides PQ and RS हैं, they are parallel to each other and the side PS and QR are parallel to each other. Okay students, now ईच साइड ऑफ, अब जो 4 साइड्स हैं, दीज 4 साइड्स अगर हम ऐसे देखें कि ये हमारे पास 4 अलग अलग वायर्स हैं, है ना। अगर हम एक साइड ऑफ रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर लूप को कंसीडर करते हैं तो वी हैव 4 स्मॉल करंट कैरिंग वायर्स, दैट इज PQ, QR, RS एंड SP। और जब भी कोई करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में लगती है, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स, मींस ये जो चारों साइड्स हैं रेक्टेंगल की, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, ऑल द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कॉइल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। नाउ each side of rectangular loop experience a force. The faces PQ and RS are always perpendicular to the magnetic field. You can see in the figure जो हमारे faces हैं PQ and RS, they are always perpendicular to the magnetic field. तो अगर perpendicular to the magnetic field है तो जो force, what is the formula for force on a current carrying element in a uniform magnetic field? उसका formula होता है IBL sin theta and sin 90 degree is 1. So the force experienced by these two faces will be IBL. The magnitude of these forces is equal. अब दोनों forces का magnitude equal है, दोनों की direction opposite है, but they are not acting along the same line of force. but उनकी line of force same नहीं है, due to which they form a couple. अब देखो, अगर दोनों forces की line of action same होती तो forces cancel out हो जाते, we would have get zero force. But here the line of action of these two forces is not same. You can see in the figure F2, the forces F2 and F1, their line of action is not same. Therefore, they will form a couple and they will tend to rotate the coil. जो coil है उसको rotate करेंगे. Now, if we see the up-down view of the rectangular loop is shown in the figure 2. See this figure. This is the up-down view of the rectangular loop. Here current element PQ and RS are shown by dot and cross. जो आपके करंट एलिमेंट हैं उनको हमने डॉट और क्रॉस से करा है एंड फोर्स F1 and F2 is shown. You can see that these two forces are forming a couple. So suppose at any instant axis of loop makes an angle theta with the direction of magnetic field. अगर वो एंगल थीटा बना रही है विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन टॉर्क विल बी इक्वल टू, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. नाउ फोर्स इज इक्वल, आइदर वी टेक F1 और F2 एंड जो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम दिस रेक्टेंगल. जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, B sin थीटा, दैट विल बी अवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, IBL इंटू B sin थीटा.
अब हमें पता है L इंटू बी क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल टू IAB साइन थीटा। नाउ द फोर्सेस F3 एंड F4। अब ये तो हमने बात करी द फोर्सेस F1 और F2 की, बट जो द रिमेनिंग फोर्सेस हैं F3 एंड F4, यू कैन सी इन द फिगर। द F3 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस QR एंड F4 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द फेस PS। ये दोनों जो फोर्सेस हैं they will also be equal in magnitude, but they are acting along the same line of force, so they will cancel out each other। मतलब जो आपका टोटल आएगा, जो टोटल टॉर्क आएगा, दैट विल ओनली बी ड्यू टू द फेस PQ एंड RS, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, IAB साइन थीटा। नाउ द रिलेशन 1 holds true for any closed loop which is lying in a plane of magnetic field making an angle theta with the magnetic field। मीन्स ये जो रिलेशन है ये किसी भी क्लोज्ड लूप पे लग सकता है जो कहाँ प्लेस्ड है, एट एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है वो इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ कॉइल, अब कभी भी किसी कॉइल में से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है एंड दैट कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्ट्स अपॉन द कॉइल हुज मैग्नीट्यूड डिपेंड्स अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ करंट। मीन्स जब भी हम कोई करंट कैरिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क, एंड जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उसे हम क्या बोलते हैं, जो टॉर्क एक्ट करता है वी कॉल इट एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, एंड दैट डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ करंट। नेक्स्ट वी हैव moving coil galvanometers are of two types. One is suspended coil galvanometer and second is pivoted coil, जो हमारे सिलेबस में है। अब हमारे सिलेबस में है suspended coil galvanometer. So today we will discuss the construction of the suspended coil galvanometer. First of all, you can see this figure. This is the figure for a moving coil galvanometer. You can see this is the figure for moving coil galvanometer. Here it consists of a rectangular or circular coil. जो नीचे ये coil है, it consists of a circular, यहाँ इसमें जो coil होता है वो circular होता है या rectangular होता है, and made by winding large number of turns। इसमें जो हम कॉपर वायर लेते हैं और उस कॉपर वायर को इस रेक्टेंगुलर और सर्कुलर जो कॉइल है उसके ऊपर वाइंडिंग करते हैं, और एंड जो इसमें जो फ्रेम है दैट इज मेटेलिक, एंड जो इसमें आपको फ्रेम दिख रहा है द फ्रेम इज मेटेलिक एंड नॉन मैग्नेटिक फ्रेम। और जो ये कॉइल है इज सस्पेंडेड बाय थिन फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप फ्रॉम टॉर्शन हेड। जो ऊपर आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स दैट इज द टॉर्शन हेड, और जो टॉर्शन हेड है इट इज कनेक्टेड टू द टर्मिनल स्क्रू T1। जो उधर स्क्रू है दैट इज टर्मिनल स्क्रू T1। द लोअर एंड ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू अ फाइन लूजली बाउंड स्प्रिंग। जो लोअर एंड है उसे हमने किसके साथ कनेक्ट करा है, स्प्रिंग के साथ, एंड कनेक्टेड टू द टर्मिनल स्क्रू T2। नाउ द कॉइल, जो पूरा कॉइल है आपका ये किसके बीच में हैंग कर रहा है, बिटवीन the two pieces, the pole pieces of powerful permanent horseshoe magnet। और यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हैं जो हमारा फ्रेम है इट इज बीइंग कनेक्टेड टू अ मिरर। और ये जो फुल अरेंजमेंट है, ये जो होल अरेंजमेंट है इट इज इनक्लोज्ड इन अ नॉन मैग्नेटिक बॉक्स टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम एयर ड्रॉट्स। दिस इज द कंस्ट्रक्शन of a moving coil galvanometer. Tomorrow we will discuss the theory and working of the moving coil galvanometer. Okay students, thank you. That's all for today.